بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں. پاکستان کی سیاسی صورتحال کچھ تبدیل ہو چکی ہے اور کچھ تبدیل ہونے والی ہے. وفاقی کابینہ قومی اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد وفاقی کابینہ بھی تحلیل ہو گئی. تمام وزراء اپنے اپنے گھروں کو جا چکے ہیں. گو کہ ابھی تک انہوں نے اپنے جو سرکاری گھر ہیں وہ خالی نہیں کیے. منسٹرز انکلیو ابھی تک خالی نہیں ہوا. سرکاری گاڑیاں ابھی تک واپس نہیں گئیں اور سٹاف ابھی تک واپس نہیں گیا اور ابھی تک استعمال کر رہے ہیں. لیکن کچھ وزیر ایسے بھی ہیں جنہوں نے مستعفی ہونے سے یعنی کہ تحلیل ہونے سے پہلے ہی اطلاع کر دی تھی کہ کل ہمارا آخری دن ہے، اس لیے گاڑی ہم واپس کر رہے ہیں. لیکن ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے. صرف ایک امین الحق صاحب وفاقی وزیر آئی ٹی جو ہیں انہوں نے گاڑی واپس کی ہے، باقی سب کسی نے گاڑی واپس نہیں کی. بہرحال ایک 87 ممبرز کی کابینہ تھی، یعنی پاکستان کی نہیں بلکہ دنیا کی سب سے بڑی کابینہ اس وقت پاکستان میں موجود تھی، جنہوں نے 16 مہینے اقتدار کے مزے لوٹے. اور ٹوٹل ان کے ارکان کی تعداد تھی 172 173. اس میں سے 87 وزراء تھے اور 87 وزراء کے ساتھ تقریباً 25 سے زیادہ قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمین تھے. 25-30 بلکہ 35 جو قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمین تھے اور اس کے ساتھ ایک اپوزیشن لیڈر تھا، ایک جناب سپیکر اور ایک ڈپٹی سپیکر. اس طریقے سے کوئی اکا دکا لوگ تھے جو ایم این ایز جن کو کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی تھی، جن کے پاس پروٹوکول نہیں تھے، جن کو مراعات نہیں دی تھی، لیکن باقی سب نے اپنے اقتدار کے مزے لوٹے. اور دوسری بات یہ کہ سب سے کیونکہ امپورٹنٹ خبریں آپ کو میں شیئر کرتا ہوں، لیکن پہلے ذرا ان کے عللوں تللوں کی بات ہو جائے. اور یہ 87 رکنی کابینہ غیر آئینی کابینہ تھی. یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ غیر آئینی کابینہ تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ 45 سے زیادہ آپ نہیں رکھ سکتے وزیر، لیکن یہ کابینہ جو ہے یہ 88 سے تجاوز اور پھر بہت انڈائریکٹلی بہت سارے لوگوں کو عہدے دیے گئے تھے اور بہت سارے غیر منتخب لوگ بھی کابینہ میں شامل تھے. یہ سارے کا سارا ہوا، لیکن بالآخر یہ جا چکے ہیں اور اب یہ بڑی بڑی میٹنگز بھی کر رہے ہیں. اور دوسری جانب عمران خان صاحب ہیں، ان کی طرف آتے ہیں کیونکہ انہوں نے تو جیل میں بھی ان کا ناطقہ بند کیا ہوا ہے، ان کا جینا حرام کیا ہوا ہے حکمراں جماعتوں کا، اور وہ وہاں پہ بھی ایک بڑی رونق لگا کے بیٹھے ہیں اٹک جیل میں. اور وہاں پہ وہ کیا مصروفیات ہیں، اور اٹک جیل جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک دفتر بن چکا ہے اور قیدی جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں. اور عمران خان صاحب کی خدمت کے لیے وہ ہر وقت وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اجازت ملے ہم آپ کی خدمت کریں گے، یہاں پہ آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. تو یہ سچویشن چل رہی ہے اس وقت. بہت ہی دلچسپ معاملات ہیں اور بڑے اہم نوعیت کے. بہرحال ایک کچھ چیزیں بتا دوں. نگراں وزیر اعظم کا ابھی تک کسی قسم کا کوئی نہیں پتا، وزیر اعظم کو بھی نہیں پتا، اپوزیشن لیڈر کو بھی نہیں پتا. ڈرامے بازی چل رہی ہے اور یہ چلتی رہے گی اور لمبی لمبی میٹنگز کرتے رہے ہیں. زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، MQM ANP، پتہ نہیں کون کون میٹنگز کرتا رہا. اور اس کے بعد پتہ چلا کہ جناب نگراں وزیر اعظم تو آپ کا نہیں آ رہا. تو نگراں وزیر اعظم تو جن کا آنا ہے وہیں کا ہی آنا ہے. اور اس سلسلے میں راجہ ریاض صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی ایک ملاقات بھی ہوئی، ایک لطیفہ ملاقات. اور راجہ ریاض صاحب نے کہا کہ 3 میں نے نام دیے اور 3 شہباز شریف صاحب نے نام دیے. نہ انہوں نے کوئی نام دیے نہ انہوں نے کوئی نام دیے، بلکہ ان کو کہا تھا کہ آپ جائیں ایک فوٹو سیشن کریں، چائے شائے پئیں اور اس کے بعد آ جائیں. اور نام جو ہے وہ ہم آپ کو خود ہی بتا دیں گے اور اس نام کے بارے میں دونوں نے کہنا ہے کہ جی ہمارا اتفاق اور ہم اس نام کے لیے متفق ہیں. یہ اس وقت کی سچویشن چل رہی ہے. اور صادق سنجرانی صاحب بھی متحرک ہو چکے ہیں نگراں وزیر اعظم کے لیے. بہت سارے نام ابھی تک آئیں گے، لیکن نگراں وزیر اعظم بننا ہے جس نے بننا ہے. دوسری جانب نگراں کابینہ فائنل ہو چکی. کابینہ وفاقی سیکرٹری تک کے فیصلے ہو چکے ہیں، صوبائی سیکرٹری تک کے فیصلے ہو چکے ہیں. ادھر خیبر پختونخوا میں 18 وزیروں کو مستعفی ہونے کا کہہ دیا گیا ہے. یہ تو ایک طرف کی صورتحال. اور نگراں کابینہ ابھی تک نہیں تشریف لا رہی اور نگراں وزیر اعظم ابھی تک نہیں آئے. تو بہرحال 2-3 دن میں یہ سارا کچھ ہو جائے گا، کیونکہ شہباز شریف صاحب نے ایک ریکویسٹ کی ہے، ایک عرضی ڈالی ہے کہ 14 اگست کو جو یوم آزادی ہے وہ میں منا لوں اور میں بطور وزیر اعظم اس میں تقریر کروں. تو اس کا آپشن موجود ہے، آئینی گنجائش موجود ہے. لیکن دوسری جانب اگلی بات جو ہے وہ ہے عمران خان صاحب. عمران خان صاحب ان کے لیے بدستور وبال جان بنے ہوئے ہیں اور اقتدار اور اختیار چھن چکا ہے.
इमरान खान साहब के वकला को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाजत दी थी कि वो जाएं और जाके मुलाकात करें, लेकिन इस्लामाबाद जेल हुकाम ने, अटक जेल हुकाम ने इमरान खान साहब के वकला को इजाजत नहीं दी और वो सारा दिन इंतजार करते रहे और इमरान खान साहब से मिलने नहीं पाए। दूसरी जानिब बुशरा बीबी वो गई हैं, उनकी मुलाकात हुई है और उनके साथ इमरान खान साहब ने तमाम अमूर पर डिस्कशन की है और उनके लिए उनके जरिए जो इत्तला पहुंची है, जो पैगाम पहुंचा है, वो बड़ा जानदार है। और इमरान खान साहब ने कहा है कि वो किसी भी सूरत में कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन को, डिसइन्फॉर्मेशन को, मिस इन्फॉर्मेशन आए तो सबसे पहले तस्दीक करनी है, इमरान खान साहब ने कहा, मुझसे, और उसके अलावा किसी और बात पे यकीन नहीं करना। मैं ना कल झुका था ना आइंदा झुकूंगा और कोई जरूरत नहीं है किसी से बात करने की और मैं अपनी पार्टी खुद लेके चलूंगा। पार्टी मेरी है, मैं आवाम से हूँ, आवाम मुझसे है, इसलिए इस बारे में भी। दूसरी जानिब उन्होंने अपनी कोर कमेटी को कहा है कि वो जानदार तरीके से पॉलिटिक्स करे, एग्रेसिवली पॉलिटिक्स करे और किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ये जुल्म की रात खत्म होने वाली है। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कोर कमेटी को कि वो फैसले करे और जो एम्बिग्युइटी हो, फैसलों की तौसीक है, इमरान खान साहब खुद करेंगे, जेल में बैठ के करेंगे और तमाम फैसले वो खुद करेंगे। इसलिए अगली बात यह है कि फिल वक्त इलेक्शन का कोई इम्कान नहीं है, इसलिए इमरान खान साहब ने कहा है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये अभी तक ये इलेक्शन करवाने की हिम्मत नहीं कर सकते, ये जुर्रत नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भरपूर तरीके से कामयाब होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जेल के अंदर की सूरत हाल है, तमाम के तमाम कैदियों की सूरत हाल मैं आपको बता देता हूँ कि इमरान खान साहब से वो जुड़ चुके हैं और इमरान खान साहब बाहर निकलते हैं तो इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगते हैं और कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं, ये नारे लगाए जाते हैं और कैदी जो है वो भरपूर तरीके से खुश खुर्रम है और कैदी भी खुश हैं कि इमरान खान साहब उनके पड़ोसी हैं, उनके साथ रह रहे हैं, उनके हमसाए हैं, उनके मोहल्लेदार हैं। लिहाजा कैदी जो है वो इमरान खान साहब की खिदमत के लिए तैयार रहते हैं और सब ने कह दिया कि जी हम भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, आप भी, हम भी आपके साथ हैं और हम जब आज़ाद होंगे तो इंसाफ, तहरीक इंसाफ के लिए काम करेंगे। ये इस वक्त की सिचुएशन चल रही है जेल के अंदर की और बड़ी ही दिलचस्प है और जेल हुकाम जो है वो भी इमरान खान साहब के गर्विदा हो चुके हैं। जी हाँ बिल्कुल, जेल हुकाम इमरान खान साहब के गर्विदा हो चुके हैं और वो क्योंकि इमरान खान साहब उनके साथ बहुत ही अच्छे तरीके से पेश आ रहे हैं और किसी किस्म का वो जो रौनक और फिरौनियत और तकब्बुर जो होता है वो नहीं है और इमरान खान साहब वहाँ पे वर्जिश भी करते हैं और दाल रोटी भी खाते हैं और जेल का पानी भी पीते हैं और आराम से अपना काम कर रहे हैं। ये तो इस वक्त की सिचुएशन है जेल के अंदर की। लिहाजा कोई इनके लिए परेशानी, क्योंकि ये सब परेशान है, इनका ख्याल था कि इमरान खान साहब जो है वो जेल के अंदर जाएंगे तो मसाइल पैदा हो जाएंगे, जेल के अंदर वो जाके कहेंगे जी मुझे जल्दी जल्दी निकालो और उसके बाद अगली बात यह है कि वो जेल हुकाम से जब बात करते हैं और कैदियों से बात करते हैं तो कोड वर्ड्स में बात करते हैं और अंदर जो है आलात लगे हुए हैं, जासूसी के आलात लगे हुए हैं, आवाज़ें बक की जा रही हैं कि अंदर इमरान खान साहब क्या बातें करते हैं, क्या माहौल है, उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है कि कहीं वो टूट रहे हैं, ज़हनी तौर पे, असाबी तौर पे टूटते हैं या नहीं, नफ्सियाती मसाइल हैं या नहीं। तो अभी तक की जो इत्तला है इमरान खान साहब अपना डटे हुए हैं और भरपूर तरीके से जो जेल को एंजॉय कर रहे हैं। अगली बात है वकला को मिलने की इजाजत नहीं दी गई। अब ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को सोचने वाली बात है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, ना उनके अहकामात उनके मतहत जज मान रहे हैं, ना डिस्ट्रिक्ट जज मान रहे हैं, ना मजिस्ट्रेट मानते हैं, ना इस्लामाबाद पुलिस उनके अहकामात मानती है, ना ही जेल हुकाम उनके अहकामात मानते हैं। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब 8 साल का कैरियर है वो किस तरीके से गुजारेंगे, ये है ग्राउंड रियलिटी। फिर दूसरी उस्ताद जो आन पड़ी है शहबाज शरीफ साहब और उनकी काबीना को, वो है जनाब खास तौर पे जो साइफर लीक हो गया है, साइफर पूरे का पूरा शाया हुआ, intercept.com की रिपोर्ट आ गई, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी है, तरदीद कोई कर नहीं सकता और अब आए बाएं शाएं की जा रही है और उसके लिए सेक्रेटरी खारजा और दीगर हुक्काम के साथ वज़रा के साथ शहबाज शरीफ साहब ने एक मीटिंग भी की है। लेकिन असद मजीद साहब जो हैं वो डटे हुए हैं और उस वक्त भी डट गए थे जब मरीम साहिबा ने और हुक्मरानों ने धमकियां दी थी और बाजवा साहब ने उनको कहा था कि आप इसकी तरदीद करें और आप टीवी पे जाके इंटरव्यू दें। इंटरव्यू मैनेज भी किए गए थे लेकिन असद मजीद साहब ने तमाम तर प्रेशर कबूल किया था और उन्होंने इनकार कर दिया था कि वो अपने लिखे हुए एक एक लफ्ज पर कायम है और उन्होंने कौमी फरीजा अदा दिया है, कौमी ड्यूटी अदा की है, इसलिए साइफर से वो पीछे नहीं हटेंगे। तो असद मजीद साहब अब सेक्रेटरी खारजा हैं और उनको पेशकश की गई है कि वो अभी भी इसको थोड़ा सा डिनाई कर दें और कुछ ऐसी फेवर करें तो हम आपको सेक्रेटरी खारजा के तौर पर बरकरार रखेंगे, अदरवाइज आपको सेक्रेटरी खारजा के ओहदे से हाथ धोना पड़ेगा। तो असद मजीद साहब जो हैं वो तैयार हैं सेक्रेटरी खारजा के ओहदे से हटने के लिए, लेकिन वो अपने जो साइफर का
कंटेंट है उससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। उसकी अमरीकी हुकाम भी इस बात को कर चुके हैं कि जनाब ये बिल्कुल दुरुस्त है, इस कंटेंट को हम डिनाई नहीं कर सकते। ये तो है इस वक्त की सिचुएशन और ये है मामलात। अब पाकिस्तान की सियासत, इलेक्शन दूर दूर तक होता हुआ नजर नहीं आ रहा और अब बारी है जनाब PDM की और पीपल्स पार्टी की और दीगर जमातों की, और उनको अब समझ आ रहा है कि उनके साथ हाथ होने वाला है। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन के बारे में अब खबरें आना शुरू हो गई हैं कि जनाब IMF भी तैयार हो गया है तवील दौरानिया के निगरान सेटअप के लिए। और उसके साथ एक और बात भी बता दूं कि वो जितने बड़े बड़े तगड़े सहाफ़ी थे जो इमरान खान साहब को झूठा कह रहे थे, जो अरशद शरीफ साहब का मजाक उड़ा रहे थे, जो इमरान रियाज खान का मजाक उड़ाते थे, जो हमारा मजाक उड़ाते थे, वो सब के सब सहाफ़ियों के लिए काफ़ी मसाइल का सामना है। उन दानिश्वरों के लिए, उन सहाफ़ियों के लिए, उन सियासी मुखालफिन के लिए, क्योंकि एक एक बात जो है वो सच साबित हो चुकी है। इस वक्त एक और बात भी आपको बता दूं कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज एक अहम फैसला करने जा रही है और रिव्यू जजमेंट्स वाला जो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में कटघरे लगाने की कोशिश की गई थी, उसका फैसला आज सादर किया जाएगा। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने कल ही रात जो साइन कर दिए। इनका ख्याल था कि 2 दिन असम्बली रोकी जाएगी और जो कौमी असम्बली की शायद 2 दिन बढ़ जाए, लेकिन उन्होंने कल ही साइन करके कल ही फारिग कर दिया। और अब जो जितने भी कवानीन हैं, सदर अलवी साहब जो इन्होंने कानून साजी की है, 54 बिल 4 दिनों में चंद लोगों ने मुल्क की तकदीर के फैसले किए। सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब ने वो तमाम बिल रोक लिए हैं और अब सोच समझ कर सदर ममलिकत मंजूरी देंगे और बहुत सारे बिल जो हैं वो कानून नहीं बन सकेंगे। कि मैं आपको फिर बता दूं कि सदर अलवी बहुत सारे कवानीन, बहुत सारे बिलों पे दस्तखत नहीं करेंगे और वो कवानीन नहीं बन सकेंगे। इस तरीके से डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का ईवान सदर में होना PDM के लिए और पीपल्स पार्टी के लिए, इन सब के लिए बहुत ही बुरा साबित हुआ है। और इस दौरान इसके अलावा भी कुछ खबरें आपसे मैं शेयर करूंगा, लेकिन कोर कमेटी का इजलास हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और उन्होंने इमरान खान साहब की जिंदगी को खतरात के बारे में आगाह किया है। उन्होंने कहा है कि जेल में उनके साथ जो गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है और आलमी इंसानी हकूक की तंजीमों और आर्मी बरादरी और आलमी इदारों को इन्वॉल्व करने की प्लानिंग की जा रही है। उन्होंने कहा है कि उनको मुशावरत हो रही है कि उनको इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि इमरान खान साहब की जिंदगी अटक जेल में खतरनाक हद तक उनको खतरा है, इसलिए उन्हें अटक जेल ले जाया गया है ताकि मरकज से बहुत दूर हो। वकला को मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही, क्योंकि वकला मिलेंगे, उनके साथ आईनी मुशावरत करेंगे, वकालतनामे पे दस्तखत होंगे, आगे दरखास्तें फाइल की जाएंगी। और ये डिलेइंग टैक्टिक्स जो है वो यूज किए जा रहे हैं और मुसलसल यूज किए जा रहे हैं। इसका वाहिद बुनियादी मकसद सिर्फ एक ही है, इसके अलावा कोई मकसद नहीं है कि इमरान खान साहब को ज्यादा से ज्यादा गैर कानूनी तौर पे जेल में रखा जा सके। दूसरी जानिब बुशरा बीबी की जो एहतसाब अदालत में मामला था उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, क्योंकि नैब हुकाम ने कहा है कि हमें बुशरा बीबी की गिरफ्तारी नहीं चाहिए। और इसी के साथ साथ नैब अदालत में एक और तोशाखाना का केस था, उसमें जमानत पर अबूरी जमानत, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने उसकी अदम पैरवी की है और इस तरीके से उनकी जमानत खारिज कर दी गई है। वो इसलिए खारिज की गई है कि कल को ये उस केस में उनकी गिरफ्तारी ना डालें, और गिरफ्तारी डालनी है तो अभी डाल दें, तो लिहाजा वो गिरफ्तारी जमानत जो है वो वापस दरखास्त खारिज हो गई और इस तरीके से अब वो हुक्म भी खत्म हो गया, क्योंकि उनको बताया गया कि ऑलरेडी तो शाखाना में इमरान खान साहब जेल में है। तो ये है सिचुएशन जी। अभी आने वाले दिनों में मजीद चीजें आएंगी, लेकिन अगली बात, एक और अहम बात जो कि अभी तक जो सख्ती है वो टली नहीं है। शानदाना गुलजार उनको अगवा कर लिया गया, पुलिस ने गिरफ्तार किया, उनकी फैमिली ने कंफर्म किया, लेकिन अब पुलिस जो है वो इनकारी है कि हमने नहीं उठाया। अब उनके अगवा का कहा जा रहा है, तो लेकिन वो उनको पुलिस ही लेके गई थी, मुबैना तौर पर उनकी फैमिली ने कंफर्म किया है। इसी तरीके से शहरियार अफरीदी को रिहा कर दिया गया था, उनको दोबारा नजरबंद किया। रिहाई का हुक्म था, रिहाई के हुक्म पे अमल दरामद नहीं हुआ, लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर भी अमल नहीं हुआ। शहरियार अफरीदी को 14वीं मरतबा गिरफ्तार कर लिया गया और उनको नजरबंद किया गया दोबारा से। रिहाई से पहले ही उनको दोबारा नजरबंद कर दिया गया, नए अहकाम जारी कर दिया गया। इसी तरीके से 57 और शहरियों को, सियासी कैदियों को रिहाई का हुक्म दिया गया था, उनकी भी रिहाई अभी तक मुमकिन नहीं हो सकी। डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी, उनका भी अगवा का मुकदमा दर्ज हो गया, उनकी भी बाजियाबी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। अली नवाज जमान के भाई नहीं बाजियाब हो सके, वो भी अगवा हैं, मिसिंग हैं। इसी तरीके से शहजाद अकबर के भाई मिसिंग हैं। ये इस तरह के जुल्म सितम अभी तक जारी हैं और जारी सारी हैं। तो देखते हैं ये जुल्म सितम कब खत्म होते हैं, क्योंकि ये बढ़ते जा रहे हैं। यह सिचुएशन भी अब तक की सूरत हाल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।